पहला विधानसभा सत्र का आज शुभारंभ हुआ। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अपने अभिभाषण के दौरान कहा कि उनकी सरकार जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी और वह नई सरकार और विधानसभा के सभी सदस्यों के साथ एक टीम के रूप में काम करेगी। श्रीनगर में विधानसभा को संबोधित करते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि उन्हें सदन के सभी सदस्यों से पूर्ण सहयोग की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार आप सभी के साथ मिलकर काम करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के पुनरुद्धार के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। मंत्रिपरिषद ने भी एक प्रस्ताव पारित किया है जिसका मैंने भी समर्थन किया है। ये जम्मू कश्मीर के लोगों की सामूहिक इच्छा और आकांक्षाओं को दर्शाता है। एलजी ने कहा कि सदन के सभी सदस्यों ने धैर्यपूर्वक सुना है और मेरी सरकार जम्मू कश्मीर राज्य को बहाल करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। एलजी ने कहा कि उनकी सरकार जम्मू कश्मीर के बेहतर भविष्य के लिए काम करेगी, जिसकी वार्षिक आर्थिक विकास दर 60% तक पहुंच गई है। हम रोजगार के नए अवसर पैदा करने और जम्मू कश्मीर की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और उन्होंने कहा कि समृद्ध समाज बनाने के लिए जम्मू कश्मीर के प्रत्येक क्षेत्र के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए देखते हैं। The highest amount of religion that traditionally could not participate fully because of our preference minorities in subject to separatist sentiments indicate that the people of Jammu and Kashmir continue to see electoral participation as a means to voice their concerns and aspirations. The successful completion of the electoral process marks an epoch in the history of Jammu and Kashmir. This gathering and the growing elected government in Jammu and Kashmir marks a moment of immense pride as it has not only strengthened the democratic fabric of our nation, but has also become a beacon of hope to all for a brighter and more inclusive future. My government is fully geared up to realize these hopes and fulfill these expectations. The aspiration for a return to the state which remains strong. Honorable Prime Minister on several occasions has already expressed his commitment to restoring a state which has been a source of everything and hope and reassurance for the people. The Council of Ministers of Jammu and Kashmir has recently passed a unanimous resolution calling for the immediate restoration of the statehood. This resolution reflects the collective will of the elected representatives, equally with the aspirations of the people for the unity, state and constitutional guarantees available to the state. It is the things of the protection of the state resolved by the people of Jammu and Kashmir in our democratic institutions. In the meantime, I urge all stakeholders to work together as one team and extend full support to my government in fulfilling the hopes and aspirations of the people. My government is fully committed to implementing the promises made to the people for further political empowerment and for creating an enabling environment for employment, sustainable development, social inclusiveness, and the expansion of the economy for enhancing the overall quality of life. It is work relentlessly on the three principles of economy, quality, and equity. That is first, our future. We commit ourselves to this balance for a better and brighter future for all. Jammu and Kashmir is growing at an annual growth. The rate of about 7%. My government is committed to faithful to this trajectory of growth. सत्र के शुरू होने के बाद विधायक जावेद अहमद डार ने स्पीकर के लिए अब्दुल रहीम राठौर के नाम का प्रस्ताव सदन में रखा और बवनी मत से अब्दुल रहीम राठौर को जम्मू कश्मीर विधानसभा स्पीकर चुना गया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने विधानसभा अध्यक्ष चुने जाने पर अब्दुल रहीम राठौर को बधाई दी।
विधानसभा सत्र की शुरुआत होते ही पीडीपी के विधायक वहीद पारा ने सदन में अनुच्छेद 370 को हटाने के विरोध में प्रस्ताव रखा, जिसका भाजपा के विधायकों ने जमकर विरोध किया और अपनी सीटों से खड़े होकर जमकर हंगामा किया। स्पीकर के समझाने के बाद भी जब भाजपा के विधायकों ने हंगामा जारी रखा तो स्पीकर ने सदन को 10 मिनट के बाद स्थगित किया। सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होते ही राज्यपाल मनोज सिन्हा ने अभिभाषण शुरू किया। पीडीपी विधायक वहीद पारा द्वारा सदन 370 के फैसले के विरोध में पेश किया प्रस्ताव को लेकर पीडीपी विधायक और भाजपा के विधायकों का क्या कहना है, आइए देखते हैं। जैसे हमने पीडीपी के 3 मेंबरों ने रेजोल्यूशन सबमिट किया कि 5 अगस्त 2019 को जो फैसला हुआ वो कश्मीर की आवाम के हक में नहीं था, और उमर साहब ने खुद कहा लोग खुश नहीं हैं, तो वही बात हमने लिख के रेजोल्यूशन में लाई। वी एक्सपेक्टेड दे विल सपोर्ट अस। क्या सरप्राइज कि एनसी के लीडर हाउस लीडर भी है और उन्होंने हमारे रेजोल्यूशन के खिलाफ खुद बोला, तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है वो सोचेंगे और सोच रहे कल परसों 4 दिन में उस रेजोल्यूशन पर डिस्कशन करेंगे, इसको एडमिट करेंगे एंड दे विल नॉट रिजेक्ट दिस रेजोल्यूशन बिकॉज दिस इज अबाउट द लेगेसी ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑल्सो, इट्स अबाउट द लेगेसी ऑफ जम्मू महाराजा ऑल्सो। हम जो मांग रहे हैं प्रिस्टीन फॉर्म ऑफ आर्टिकल 370 शुड बी रेस्टोर्ड, स्पेशल स्टेटस शुड बी रेस्टोर्ड एंड 1947 में जो जम्मू कश्मीर की स्टेट एग्जिस्ट जैसे होती थी वैसे ही वापस होनी चाहिए। शुक्रिया। देखिए ऐसा है कि कोई भी चीज जो है एक मर्यादा होती है। आप शादी वाले घर में जाते हो तो बधाई देते हो, तो आज बधाई का जो संदेश था उसमें तो कोई रेजोल्यूशन लाना जो है वो मर्यादा के खिलाफ है। और जम्मू कश्मीर के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा वोट दिए हैं। 26.6% वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं, और कोई भी बात जो देश के खिलाफ होगी उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और भारतीय जनता पार्टी जो है उसके शेर जो डट के मुकाबला करेंगे। हाँ, हम लोग ये चाहते हैं कि यहाँ शांति हो और उन्नति हो, तरक्की हो, उसके लिए हमारा हर एक प्रयास, हम सरकार के भी साथ रहेंगे और देश के भी साथ रहेंगे। कुछ रेजोल्यूशन जिसका कंटेंट पता नहीं, ऐसा रेजोल्यूशन जो रूल्स में या प्रोसीजर में या किसी प्रावधान में जिसका कोई भी इसकी जिसे कहते हैं जवाबी नोयत कोई नहीं, उसकी लीगल सिग्निफिकेंस कोई नहीं, हम उसको मैटर इशू ना बनाए। वो कुछ पढ़ना चाहते थे, ऑब्जेक्ट कि आप एजेंडा से बिना आप रेजोल्यूशन कोई भी नहीं ला। रेजोल्यूशन क्या है, उसकी लैंग्वेज क्या है, उसकी टर्मिनोलॉजी क्या है और उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, दैट इज नॉट ए पार्ट ऑफ द असेंबली प्रोसीडिंग। और आपको भी रिक्वेस्ट है कि आप भी इसको डिस्कस ना करें। मैं यही कहना चाहूंगी, पीडीपी जो पहले से जहर उगलती आई थी वही जहर उगलने का प्रदर्शन आज भी असेंबली में उन्होंने किया। उसी तरह से जिस तरह से वो पहले जनता को गुमराह करते थे, आज भी उन्होंने हमारे अवाम को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन हमने उनकी कड़े शब्दों में निंदा की। और मैं यही कहूंगी, हमें जम्मू कश्मीर की अवाम के भले के बारे में सोचना चाहिए, जम्मू कश्मीर के मसलों को लेकर आगे बढ़ना चाहिए, चाहे वो सड़क का मसला हो, चाहे पानी का मसला हो, चाहे बिजली का मसला हो, चाहे स्कूल कॉलेज का मसला हो, हमें उन मसलों को लेकर काम करना चाहिए, ना कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कश्मीर घाटी में हो रहे आतंकी हमलों की कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने इन हमलों को कायराना बताते हुए कहा कि ये आतंकी संगठनों के सरगांव की बौखलाहट है। तरुण चुग ने कहा कि इन हमलों का सुरक्षा बल आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं और इन घटनाओं में शामिल हर आतंकी का सफाया किया जाएगा। तरुण चुग ने कहा कि आतंकी घटनाओं को अंजाम देने वाले किसी भी आतंकी को बख्शा नहीं जाएगा। नागरिकों पर हमला कर रहे हैं, श्रीनगर में जो घटनाएं हुई हैं वो निंदनीय है और कायरतापूर्ण कदम है। हमारी सुरक्षा एजेंसियां हर आतंकवादी मंसूबे को, उनके षड्यंत्र को लगातार कुचल रही है, ये भी कुचला जाएगा। एक दिन पहले ही एक बड़े आतंकी कमांडर को हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने कब्र में पहुंचाया है, और अब जिनके हाथों में हथियार हैं, हमारे नागरिकों पर हमला कर रहे हैं, उनको भी जल्द ही कब्र में पहुंचाया जाएगा। आतंकी सरगनाओं की कायरतापूर्ण ये घटनाएं करना उनकी बौखलाहट बता रही है। आतंक का सफाया हो चुका है, जिसने भी ऐसा दुस्साहस किया उसे बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी सजा दी जाएगी। आतंक के पन को भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सच शर्मा श्रीनगर से जम्मू पहुंचे। जम्मू पहुंचने पर एयरपोर्ट पर पार्टी कार्यकर्ताओं उनके समर्थकों द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर सच शर्मा ने बताया कि जिस तरह से उनका भव्य स्वागत हुआ है, इससे साफ होता है कि लोगों के दिलों में भाजपा के लिए कितना प्यार है। उन्होंने पार्टी के बतौर प्रदेश अध्यक्ष दोबारा सेवा करने का अवसर प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष का आभार जताया।
गालियाँ ये अपने आप में बताती है भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों के मन में प्यार है। और मैं राष्ट्रीय नेतृत्व का माननीय जेपी नड्डा जी का बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि मुझे पार्टी की सेवा करने का पुनः जो है वो मौका मिला है। इन शब्दों के साथ मैं सारी की सारी जनता का, पार्टी के कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करना चाहता हूँ जो आज भारी संख्या में शिवसेना यूटीवी की जम्मू कश्मीर इकाई ने सरकार से जम्मू को स्थायी राजधानी घोषित करने की मांग की है। अपनी इस मांग को लेकर शिवसेना यूटीवी ने जम्मू में प्रदर्शन किया और अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे शिवसेना यूटीवी के प्रदेश अध्यक्ष मनीष साहनी ने कहा कि पिछले 70 वर्षों से लगातार जम्मू के साथ भेदभाव का सिलसिला जारी है। उन्होंने कहा कि अब तक तमाम सियासी दलों ने जम्मू के लोगों को भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर अपनी सियासी रोटियां सेकी। उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री अब्दुल्ला से विधानसभा के इसी सत्र में जम्मू को स्थायी राजधानी घोषित करने की मांग की है। देखिए, आज जो हमारा प्रदर्शन है वो जम्मू को स्थायी राजधानी, एक परमानेंट कैपिटल बनाने की मांग को लेकर है। आप देखिए, जम्मू कश्मीर के पिछले 70 सालों के इतिहास के अंदर जम्मू के साथ कभी इंसाफ नहीं हुआ। जम्मू हमेशा जो है वो भेदभाव का शिकार रहा, नजरअंदाज होने का शिकार रहा। जम्मू को लेकर पार्टियों ने जो है अपनी राजनीतिक स्वार्थ साधा, राजनीतिक रोटियां सेकी, यहाँ से ऐतिहासिक जीत भी दर्ज की, मगर उन पार्टियों ने भी कभी जम्मू का हित नहीं सोचा। आज हमारी मांग है कि आज विधानसभा का सत्र भी है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी से हमारी मांग है कि वह जम्मू को इसी सत्र के अंदर स्थायी राजधानी, परमानेंट कैपिटल ऑफ J&K घोषित करें। देखिए, इसके पीछे कोई राजनीतिक नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है। जम्मू को अगर आप वैसे भी देखो तो यहाँ प्रशासनिक कामकाज मौसम की मार नहीं होती, 365 दिन तक जारी रह सकता है। सचिवालय हर दिन खुल सकता है। आतंकवाद की दृष्टि से भी जम्मू जो है वो कश्मीर से यहाँ पर जो है शांति प्रिय इलाका है जम्मू। तो सरकार का काम सुचारू रूप से चले, जनता जो महरूम रही है अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए, उनका जो है अपना फायदा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बयान को लेकर राष्ट्रीय बजरंग दल ने जम्मू में विरोध प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के इस बयान को लेकर विरोध कर रहे थे, जिसमें उन्होंने आतंकियों को मारने के बजाय पकड़ने की बात कही। राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रदेश अध्यक्ष राकेश शर्मा ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के इस बयान की कड़ी आलोचना की। देखो, हमारा विरोध जो आज का वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ है। जो उनकी स्टेटमेंट है उनके खिलाफ है। उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि आतंकवादियों को मारा नहीं जाना चाहिए। जो आतंकवादी हमारी सेना, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस और हमारे निर्दोष नागरिकों का खून बहा रहे हैं, ऐसे आतंकवादियों को मारा न जाए तो क्या करना चाहिए, क्या उनकी आरती करनी चाहिए? ये बात हम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को हम आपके चैनल के माध्यम से पूछ रहे हैं। के तहत कार्यक्रमों के आयोजन का सिलसिला जारी है। इस कड़ी में जम्मू के गांधीनगर अस्पताल में भी एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें एंटी करप्शन ब्यूरो के DIG विकास गुप्ता मुख्य रूप से शामिल हुए। बैठक के दौरान स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाने को लेकर चर्चा की गई। एलिजिबल आप सभी को अवेयर होंगे कि हमारे जो है फर्स्ट होम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी बर्थ डेट को कोइंसाइड करते हुए जो है हम हमेशा अक्टूबर के लास्ट वीक में हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। अवेयरनेस वीक में हमारा ये मोटो रहता है कि जितने भी हमारे डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं, जितने भी उनमें ये एक मुहिम चलाई जाए कि करप्शन के अगेंस्ट लोगों को जागरूक कराया जाए, ताकि वो अपनी वाइफ फेस करें जहाँ पे उनको करप्ट प्रैक्टिसेस नजर आती हैं, ताकि हमारा जो है सोसाइटी एक करप्शन फ्री सोसाइटी बने, लोगों को उनके राइट्स मिलें और बिना किसी दिक्कत के। थैंक यू सर। इसके लिए मैं ज़्यादातर जो है ना बहुत कंपोनेंट डिपेंड करता है सोसाइटी हमारी कैसी है। हम बहुत मोटिवेट करते हैं सोसाइटी को कि आप हमारे पास कंप्लेंट चाहिए, जहाँ आपको दिखता करप्शन प्रैक्टिसेस दिखती हैं, करप्शन दिखते हैं, आप हमारे इंटरनेट कीजिए। लेकिन जब तक जो हमारी पब्लिक, हमारे सिटीजन जागरूक नहीं होंगे
तब तक हमारी तरफ से जितनी मर्जी हमारी कोशिश होगी। हमारा जो है हर अटेम्प्ट इतना सक्सेसफुल नहीं रहेगा जब तक हमारी जो स्टेक होल्डर है आप लोग देखते हैं, आप लोग हाईलाइट नहीं करेंगे तब तक इस को, तब तक हमारा कोई जो भी है ऑल एफर्ट वो कोई रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं हो सकता। सर एक मैसेज आपसे लेंगे, लोग डरते हैं कि हमारी एसीबी के पास आने के लिए कि शायद उनका काम नहीं होगा अगर करप्शन के चार्जेस में उस ऑफिसर को फंसाया जाएगा, तो आपका मैसेज क्या रहेगा एक मीडिया के माध्यम से? हमारा जो है ऑर्गेनाइजेशन एस्पेक्ट है कि हमारा करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकना है, करप्ट एलिमेंट को रोकना है, ठीक है। काम हमारा कि जब आप पैसेज ऑफ टाइम जब करप्शन अपने आप मेलोडाउन हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, लोगों के काम अपने आप निकलेंगे, डिपार्टमेंट को लगेगा कि नहीं करप्ट प्रैक्टिस में अगर इन्वॉल्व होंगे तो एसीबी में या कोई अदर एरिया जैसे कुछ ना कोई हमारे ऑर्गेनाइजेशन जो है एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन। जम्मू के जीएमसी अस्पताल में दवाइयों सहित अन्य सामान को रखने के लिए ड्रग कोल्ड स्टोर का निर्माण किया जाएगा, जिसका शुभारंभ जीएमसी के प्रिंसिपल डॉक्टर आशुतोष गुप्ता ने किया। इस अवसर पर डॉक्टर आशुतोष गुप्ता ने बताया कि इस कोल्ड स्टोर की अस्पताल को बेहद जरूरत है। अस्पताल की इस कमी को दूर कर दिया गया और अब इस स्टोर में वैक्सीन, कैंसर की बीमारी की दवाइयों सहित अन्य सामान भी रखा जाएगा। आज हमने जीएमसी में जो बहुत एक नेसेसरी हमारी शॉर्टेज थी, कमी थी, उसको पूरा किया। कोल्ड स्टोरेज पर स्टोरेज ऑफ मेडिसिन विच रिक्वायर कोल्ड स्टोरेज, वो हमने इंस्टॉल करके इसको इनॉग्रेट किया। इसके सबसे बड़ी बात है कि जो टेम्परेचर रिकमेंडेड होता है 2 से 8 डिग्री जो मेडिसिन होती हैं उनको स्टोर करने के लिए, वो जनरेट किया हमने। और ये दिस इज द लेटेस्ट टाइप, जैसे मैंने बताया, आपको देखा कि इसमें थर्मोस्टेट लगा हुआ है जो उसी टेम्परेचर को मेंटेन करेगा, ना ऊपर जाने देगा ना नीचे जाने देगा। तो जो कोल्ड चेन मेंटेनेंस है, जैसे लॉस ऑफ वैक्सीन हैं, हमारी एंटी कैंसर मेडिसिन हैं, प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, जिनको टेम्परेचर मेंटेनेंस अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस है, उसको स्टोरेज में हेल्प मिलेगी। सबसे बड़ी बात है कि लॉस ऑफ पोटेंशियल नहीं होगा उसका। ये नहीं होगा कि इसमें इसकी दवाई है, इसमें पोटेंशियल गर्म हो गई, पोटेंशियल हो गई। इट्स वेरी बिग रूम, ह्यूज रूम। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि टोटली डोनेशन बेसिस पे हुआ है। वॉलंटरी डोनेशन हमने जो इसमें कलेक्ट करके 4 से 5 लाख रुपए की कीमत की। नियमित करने सहित अन्य मांगों को लेकर कठुआ म्यूनिसिपल काउंसिल के सफाई कर्मियों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे सफाई कर्मियों का आरोप था कि वो पिछले कई सालों से म्यूनिसिपल काउंसिल कठुआ में बतौर सफाई कर्मी काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें नियमित नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि स्थायी होने का सपना लेकर उनके साथ इस दुनिया से भी चले गए और लेकिन सरकार उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। डिमांड कोई नहीं चाहिए, डिमांड नहीं जो डेली वेज चाहिए लेबर पक्के किए जाने 7 साल 10 साल की डिमांड इंदा होता है। लेकिन इसे 19 साल हो गए जिन्हें जो अगे तो ज्यादा 12 मुलाजिम साढ़े कठुए की मर गए, कच्चे बेचारे मर गए, कई के घर पूरे परिवार खत्म हो गया, एक बंदा मरना, जनानी के बच्चे खत्म हो गए। बिस्नाम में चोरी की घटनाओं का सिलसिला जारी है। पुलिस के लाख दावों के बाद भी चोर क्षेत्र में लगातार चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। बीती रात भी चोरों ने बिस्नाम में चोरों ने एक फ्रूट सब्जी की दुकान को अपना निशाना बनाया और दुकान में रखा गया फ्रूट और सब्जी पर हाथ साफ किया। मेरा नाम से रात 11 बजे अभी तो गए हैं, तेरे भी मैसेज होया मुड़े फोन किया मेरा कोई चोरी हुई है, करबाल बजेगा सारा रुपया नहीं होना। बड़ी इधर नंगे का बंदा इधर माल पाया उन्हें, चुप्पे का काम है, कल्ले बंदे का कोई काम है नहीं। तो ना कोई स्कूटी सकारे भी इन्ना सोचा जाता है कौन गड्डी लाएगी। कौन इलाके से बंदा कहाँ हो जेकर पहला कोई फड़िया फड़ाया हो, पिछली असली भी 2-3 बड़ी हुई है चोरी है। कोई गड्डी वाला आटो वाला कोई काका की स्कूटी में चलता नहीं तो कोई आटो लाता फटाफट पाना ले जाता, चुके का काम है, कल्ले बंदे का काम किया है। भगवती नगर से गोल रेवेन्यू कॉम्प्लेक्स तक जाने वाली सड़क की खराब हालत को लेकर स्थानीय लोगों में भारी रोष है। लोगों का आरोप है कि पिछले कई सालों से सड़क खस्ता हालत में है और लेकिन बार बार गुहार लगाने के बावजूद भी प्रशासन इसकी मरम्मत को लेकर कोई कदम नहीं उठा रहा है। लोगों का आरोप है कि आए दिन सड़क की खराब हालत हादसों का कारण बन रही है और लेकिन कोई इस सड़क की सुध लेने वाला नहीं है।
पिछले 5 साल से हम ये देख रहे हैं, यहाँ की यही हालात है। इतनी धूल है, बुजुर्ग लोग, अस्थमा की किसी को प्रॉब्लम है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। बहुत रिक्वेस्ट करी हमने, यहाँ पहले जो मेयर थे चंद्र मोहन गुप्ता 3 बार आए, उनको बताया दिखाया। यहाँ उसके बाद जो नए मेयर हैं उन तक हमने अप्रोच की, वो मिले नहीं है। ये हालात देख लीजिए आप कि कैसे ये कॉलेज है, ये बच्चे हैं, इनको बुलाया, पता नहीं क्या इनको नहीं आ रहे, या इनके टीचर से हमने बात की कि हम एम्प्लॉई हैं, हम ये नहीं बोल सकते। आप धूल की हालात देख लो, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, और हमने हाथ भी जोड़े, और हमने R&B ये सारी टीम, ये देख लो, इनको दिखाओ, सारे गए। उन्होंने बोला बजट नहीं है, तब इलेक्शन नहीं हुए थे। अब इलेक्शन भी हो गए, सरकार आ गई, यहाँ भरपूर जम्मू में बीजेपी हमने जितवाई और जीती। अभी एक बताओ, क्या वहाँ से फारूक साहब या उमर अब्दुल्ला के यहाँ रोड बनाएंगे? वो अपने कश्मीर का काम कर रहे हैं, उन्होंने पहले भी किया और अभी भी वही करेंगे। और यहाँ की आप हालात देख लो, ये स्मार्ट सिटी में हम रह रहे हैं, और ये दूर देख लो आप, बिल्कुल कैमरा घुमा के दिखाओ। सर किस बात ये बताओ, यहाँ के हमारे जो लोकल लोग हैं, लोकल लीडर करेंगे, सरकार उमर अब्दुल्ला साहब यहाँ के करेंगे? आप देख लीजिए कितनी दूर है। हमने हाथ भी जोड़ लिए, रिक्वेस्ट भी कर ली, ये जितने लोग हैं हम सारे गए, और कहते बजट नहीं है। ये तो है, ये देखो सब से डिमांड कर रहे हैं, चाहते हैं, मतलब आप वो बात करवाना चाहते हैं कि हम इनसे भीख मांगे, भीख ही मांग रहे हैं। रोड दो, इसको बनाओ, 5 साल से ये टेंकर डाल रहे हैं। आरएसपुरा में बासमती की फसल पककर तैयार है, लेकिन कटाई के लिए मजदूर न मिलने से किसान परेशान है। किसानों के मुताबिक इस बार बाहरी राज्यों से ना तो मजदूर आए हैं और न ही फसल काटने के लिए कंबाइन मशीनें आई हैं, जिसके कारण फसल की कटाई में देरी हो रही है। उन्होंने कहा कि धान की कटाई में देरी से गेहूं की अगली फसल भी प्रभावित होगी और किसान बाहरी राज्यों से मजदूरों में आने का कारण घाटी में हो रहे आतंकी हमलों को मान रहे हैं। किसानों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों की खबरें सुनकर मजदूर नहीं आ रहे हैं। उन्होंने सरकार से बाहरी राज्यों से मजदूर और कंबाइन मशीनों को लाने की व्यवस्था कराने की मांग की है। सरकार है जो बहुत ज्यादा बार-बार अपील कर रहे हैं कि किसानों की इस टाइम जी है पूरा धान का फसल है वो बिल्कुल पक के तैयार है, पर सब तो बड़ी प्रॉब्लम यह है किसानों की कि ਜਿਹੜੇ मजदूर अदर स्टेट ਤੋਂ आते ही वो बिल्कुल बहुत ही कम आए ना, बहुत ही घट आए ना, तो इस वास्ते फसल की कटाई और टाइम भी नहीं हो रही। और सब तो बड़ा है कि अगर सरकार चाहे तो दूसरी स्टेट ਤੋਂ जिस तरह पंजाब चों साडे कंबाइन वगैरह आती ही तो थोड़ा जिहा फसल ਉਹਦੇ ਨਾਲ भी जल्दी कटाई हो जाती है। इस बारी कंबाइनां भी बहुत कम है और मजदूर ਜਿਹੜੇ ने है नहीं है, और मन मर्जी नाल 800 रुपया 900 रुपया 700 रुपया दिहाड़ी लै रहे ना मजदूर। ਜਿਹੜੇ किसान वो इतने परेशान है। और बाकी सरकार ने ਜਿਹੜਾ भी रेट कढ़िया बासमती का तो बहुत ही कम रेट है, इस टाइम बहुत ही बुरी हालत है। किसान बहुत ज्यादा हो चुके हैं, मजबूर हो गए हैं नहीं आ रहे। और सब तो ज्यादा है कि बाहरली स्टेट के और मजदूर डरते नहीं आ रहे। जिस तरह के तुम देख रहे हो श्रीनगर साइड में मजदूरों मतलब उन्होंने मार दिता गया और वो डरते JNK ना ही सुन के उत्थे दहशत बहुत है। इस वास्ते वो बाहरली स्टेटा के चाहे वो बिहार दे ने चाहे उत्तराखंड दे ने या किसी भी स्टेट दे ना वो जम्मू का नाम सुन के बिल्कुल नहीं आना चाहते। और सब तो बड़ा है कि अगर टाइम की फसल की कटाई ना हो तो जी जमीन है वो नीचे तू बिल्कुल खुश्क हो चुकी है और अगला फसल है गेहूं का फसला लगाना वो भी बहुत मुश्किल हो गया जिम्मेदारों। फसल के बारे में असीं इहो गल करना चाहते हैं कि फसल इस वक्त तैयार है और फसल तैयार है मगर कटाई है जी लेट हो गई है क्योंकि कटाई जोड़े बाहर तो मजदूर आते ही मजदूर यानी कि टाइम से इस बार नहीं पुजे जी क्योंकि एक तो डर गए ना क्योंकि श्रीनगर के हालात खराब ने बाहरी मजदूरों को जो मारिया जाता गया उसकी वजह नाल मजदूर डर रहे हैं और मजदूर यानी कि इतने बहुत घट आ रहे हैं और वो बाद फसल साडा लेट होता गया। अगर खुदा ना करे कि बारिश किते पै जाए कि बारिश पै जाए तो साडा फसल या ओले पै जाए तो फसल की तबाही हो जाएगी। तो अं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अगे रिक्वेस्ट करने हैं भाई जी फसल है इनू यानी कि जिदा पंजाब की तरह कंबाइना यानी कि हर पंचायत में कंबाइना 2-2 3-3 आई दी इस जगह साढ़े कंबाइन इस बार बड़ी घट आई है। तो अं चाहते हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अगे कि भी कंबाइना मंगवान और जल्दी से जल्दी फसल है जो जिमीदार का नवेड़िया जा सके ताकि जिमीदार को राहत मिल सके। नहीं तो किसान तो बेचारा अगर बारिश पै गई तो किसान परेशान हो जाएगा मर जाएगा क्योंकि चलिए न्यूज ब्रीफ में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।